اور مانسون بارشوں کے پہلے سپیل کا آغاز، جڑواں شہروں اور گردنواح میں وقفے وقفے سے بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس اور پارک روڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسلام آباد کی جناح سپر مارکیٹ میں پارکنگ میں کھڑی 2 گاڑیوں پر درخت گر گیا۔ بات کریں گے شہزاد علی سے۔ شہزاد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، مونسون بارش کے پہلے ہی سپیل نے جڑواں شہر اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو موسم ہے اسے یکسر تبدیل کیا ہے اور گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی پھوار جاری ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ 6 جولائی تک جاری رہے گا۔ آج اس طوفانی بارش سے جناح سپر مارکیٹ میں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے اوپر جو ہے ایک درخت گرا، جس سے خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت پانی جمع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارک روڈ کے مختلف حصوں پر بھی جو ہے وہ پانی جمع ہونے کی اطلاعات ہیں، جنہیں ضلع انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ شہر میں جہاں پر بھی پانی جمع ہوا ہے اسے نکال دیا جائے، اور ضلع انتظامیہ نے تمام ٹیموں کو الرٹ کر دیا ہے کہ شہر میں کہیں بھی جو ہے وہ اربن فلڈنگ والی سچویشن نہ ہو، اس لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے ٹیموں کو بھی، اور بارش کا جو سلسلہ ہے یہ 6 جولائی تک جاری رہے گا وقفے وقفے سے۔ جی شہزاد، آپ کا شکریہ۔ کاہنہ سے پھولوں کے جنازے اٹھے، بڑے بھاری جنازے اٹھے، 14 بچے منو مٹی تلے جا سوئے۔ سانحہ کاہنہ کا ذمہ دار کون؟ اب تک تعین نہ ہو سکا۔ ایف آئی آر درج مگر کسی سرکاری اہلکار یا ادارے کو غفلت کا مرتکب قرار نہیں دیا گیا۔ کیس میں صرف خاتون ٹیچر کو نامزد کیا گیا۔ جس انفورسمنٹ ٹیم پر سوال اٹھ رہے ہیں، مقدمہ بھی اسی کی مدعیت میں درج ہوا۔ اس کے علاوہ سی پی او اور کمشنر لاہور کے مطابق مجرمانہ غفلت یا جرم ثابت ہوا تو کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے جاں بحق بچوں کے ورثاء کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، مگر متاثرہ خاندان صرف انصاف چاہتے ہیں۔ دل میں قبر سی بن جاتی ہے جب ماں باپ سے اولاد بچھڑ جاتی ہے۔ کاہنہ سے پھولوں کے جنازے اٹھے، بڑے بھاری جنازے اٹھے، 14 معصوم بچے منو مٹی تلے جا سوئے۔ سانحہ کاہنہ کا ذمہ دار کون؟ اب تک تعین نہ ہو سکا۔ ایف آئی آر میں اقدام قتل کی دفعات شامل، نہ ہی کسی سرکاری اہلکار یا ادارے کو غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ مقدمے میں صرف خاتون ٹیچر کو نامزد کیا گیا۔ جس انفورسمنٹ ٹیم پر سوالات اٹھ رہے ہیں، مقدمہ بھی اسی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ سوال یہ ہے، کیا مقدمات جلد بازی میں درج کیا گیا؟ کیا کمزور تفتیش متاثرہ خاندانوں کو انصاف دے پائے گی؟ ٹیوشن سینٹر میں 40 سے 50 بچے پڑھتے تھے، کیا این او سی لیا گیا تھا؟ ٹیوشن سینٹر چلانے والوں کو اجازت کس نے دی؟ بلڈنگ محفوظ تھی یا صرف کاغذوں میں محفوظ لکھی گئی؟ عمارت کا حفاظتی معائنہ کب ہوا؟ تعمیراتی کام کی اجازت کس سے لی گئی؟ عمارت میں تعمیرات جاری تھیں، کسی ادارے نے انسپیکشن کیوں نہیں کی؟ ضلع انتظامیہ کی سنگین غفلت پر کوئی پوچھ گچھ کیوں نہ ہوئی؟ آخر اس عمارت کو خطرناک قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا ریسکیو اور ایمرجنسی رسپانس کا نظام بر وقت اور مؤثر تھا؟ کیا اس علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کبھی مؤثر کارروائی ہوئی؟ کیا کسی ادارے کے پاس ایسے ٹیوشن سینٹرز کا مکمل ڈیٹا موجود ہے؟ شہر میں کتنے ٹیوشن سینٹر رہائشی یا غیر منظور شدہ عمارتوں میں چل رہے ہیں؟ کیا افسران کی غفلت کا بھی احتساب ہوگا یا صرف ماتحت عملہ قربانی کا بکرا بنے گا؟ سی پی او اور کمشنر لاہور کے مطابق ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں۔ مجرمانہ غفلت یا جرم ثابت ہوا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے جاں بحق بچوں کے ورثاء کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، مگر متاثرہ خاندان ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سانحہ کاہنہ ملبے تلے دبے معصوم بچوں کی ہر گزرتی سانس مدد کی منتظر تھی۔ متاثرہ خاندانوں کے مطابق نہ بر وقت ریسکیو اہلکار پہنچے اور نہ ہی اسپتال میں مطلوبہ سہولیات میسر تھیں۔ ایمرجنسی میں صرف ایک ڈاکٹر اور ایک نرس تھی۔ شہری خود بچوں کو سی پی آر کرتے رہے۔ سی او ہیلتھ کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں دستیاب وسائل کے مطابق فوری طبی امداد فراہم کی۔ زیادہ تر بچے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ صرف چھت نہیں، نظام بھی ملبے تلے دب گیا۔ بچے ملبے تلے زندگی اور موت کے درمیان پھنسے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ زندگی سے دور لے جا رہا تھا، مگر امدادی ٹیموں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عینی شاہدین نے کچا چٹھا کھول دیا۔ بازار کی طرف جا رہے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نا یہاں پہ شور جا رہے تھے، رو رہے تھے۔ جب ہم نے سنا تو ہم اس طرف کو آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ چھت گری ہوئی ہے، دروازہ کچھ آدھا ٹیڑھا ہوا تھا، کچھ بند تھا۔ پھر دروازے کو توڑ پھوڑ کے دروازہ کھولا ہے، ہاتھوں سے مٹی کھودی ہے اور کچھ بچے ہم نے نکالے ہیں۔ اگر ملبہ پہلے ہٹ جاتا، اگر طبی سہولتیں بر وقت میسر ہوتیں
अगर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला होता तो शायद कई घरों में सफ़े मातम ना बिछी होती, क्योंकि जब जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचाया गया तो एक और इम्तिहान मुंतजर था। हॉस्पिटल में ना कोई अमला है ना कोई डॉक्टर है, कुछ भी नहीं कोई वहाँ पे कर रहे। खुद हम अपनी मदद से अंदर लेके गए हैं, अपनी मदद से बाहर लेके आए हैं। लवाहिकीन के मुताबिक इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स थी। किसी ने नन्हे सीने पर हाथ रखकर CPR किया, किसी ने अपने हाथों से ऑक्सीजन ढूंढी, कोई डॉक्टर तो कोई सिर्फ अपने बच्चे का नाम पुकारता। मगर वक्त सबसे तेज निकला, बहुत से मासूमों की सांसें खामोश हो गईं। CEO हेल्थ का मौक़िफ़ मुख्तलिफ, दावा किया अस्पताल में दस्तियाब वसाइल के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, डॉक्टर्स और अमले ने जिम्मेदारियां निभाई। डॉक्टर आसिफ अरबाब के मुताबिक ज्यादातर बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार चुके थे। छोटा सा कमरा, 35 बच्चे, कमजोर छत और अधूरी तामीर। सानेहा तो होना था। सामिया सईद ने कान्हा के ट्यूशन सेंटर में पेश आने वाले हादसे की जाए वक़ुआ से मंजर कशी की है। आपको भी दिखाते हैं। इलाका भी सोगवार है और हर गली, एक गली छोड़कर दूसरी गली में ही सफ़े मातम भी बिछी हुई है। तो आइए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि इस ट्यूशन सेंटर की खस्ता हाली क्या थी और क्या यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए था। मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जगह जगह किताबें देख सकते हैं। यकीनी तौर पर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे और माँ ने अपने बच्चों को बड़ा तैयार करके भेजा होगा। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, बहुत छोटी और कंजस्टेड जगह है ये। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइम में इतने बड़े बच्चों का यहाँ पर मौजूद होना इट सेल्फ ही एक केस स्टडी है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद कैसे थे। एग्जैक्ट ये वो जगह थी और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छत है वो कोलैप्स की थी। और मैं आपको यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये सिर्फ इतना छोटा सा कमरा है कि शायद हम 5 कदम अगर चलें तो ये कमरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 19, 20 या 22 लोगों का यहाँ पर मौजूद होना इट सेल्फ एक सानेहा है। अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये जो टाइल्स आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, इतना काम जो है वो मुकम्मल हो चुका था, जबकि ये पूरा एरिया जो कोलैप्स किया है वो ये होता था। लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो भी छत की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आखिर क्यों बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई। मासूम ख्वाब, नन्ही मुस्कुराहटें और वालिदैन की उम्मीदें मनो मट्टी तले जा सोईं। 3 लख्ते जिगर खोने वाली माँ पर सख्त तारी है। दादा को भी पोते का गम सता रहा है। सानेहा कान्हा में घर घर गम की दास्तां है। कोई माँ का प्यारा था, कोई बाप का राज दुलारा था, कोई घर भर की आंख का तारा था। लाहौर के इलाके कान्हा में सिर्फ छत नहीं, कई घरों पर आसमान टूट पड़ा। मासूम ख्वाब, नन्ही मुस्कुराहटें और वालदेन की उम्मीदें मनो मिट्टी तले जा सोईं। वो बच्चे जो बस्ते उठाए मुस्तकबिल लिखने निकले थे, किस्मत ने उनके नाम कफन लिख दिए। जब मैंने अपने बेटे को निकाला, मुझे देख के रोने लगा, कहता दादाबू मुझे निकालो। ये पुकार बूढ़े दादा के कानों से कभी नहीं जाएगी। मलबे तले दबा नन्हा इर्तिजा दादा को देखकर रोता रहा, बचाने की इल्तिजाएं करता रहा। एक और दरवाजा जहां खुशियां बरसों नहीं लौटेंगी। उरूज, ईमान और अब्दुल्ला, 3 बहन भाइयों की आखिरी फरमाइश माँ के लिए हसरत बन गई। जाते वक्त कह के गए मामा हमारे लिए मसर चावल बनाना, हमने आके खाने अकेडमी से और नहीं नसीब हुए खाने। तीनों बहन भाई हमेशा के लिए माँ की आगोश से बिछड़ गए और नन्हा मुर्तजा अब भी मौत से लड़ रहा है। 5 साल का इर्तिजा और 6 साल की रमशा भी घर वालों को हमेशा का गम देकर रुखसत हो चुके। जो मामा के आज घर खाली हो गए हैं वो क्या करेंगे। ये हमारा घर खाली हो गया, हमारे घर जाना उन्होंने नानो नानो करना, मैंने आने ना देना। 7 साल की तस्बीह किताबें उठाकर पढ़ने गई, मगर वापस अपने कदमों पर ना लौट सकी। भाई वो लम्हा भूल नहीं सका जब मलबा गिरा और बहन की मदद के लिए उठती आवाजें खामोश होती चली गई। 3 बजे हम ट्यूशन गए और 4 बजे छत गिर गई और नेड़ा हो गया और सरिया बज गया मेरे पैरों में नीचे। और मैं भाई को आवाज़ दी, अंकल ने मुझे बाहर निकाला और नेड़ा था अंदर, कोई भी नहीं दिस रहा था। और आधे बच्चे जिंदा हो गए, आधे बच्चे मर गए हैं। कान्हा की गलियों में आज मातम है।
घर घर से उठती सिसकियां बहुत देर तक सुनाई देती रहेंगी। मुल्क में प्री मॉनसून का पहला स्पेल ही धुआंधार। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। चित्रार और चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, दर्जनों मकान बह गए, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जा बहक। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 और खुशाब में 1 शख्स जा बहक हुआ। ज़ौब में मुख्तलिफ हादसात में 3 अमवात, अटक में दीवार गिरने से 2 भाई और छत गिरने से खातून जान से गई। हरीपुर में बारिश के पानी में डूबकर बच्चा जान की बाजी हार गया। प्री मॉनसून का पहला धुआंधार स्पेल, नशीबी इलाके डूब गए, नदी नालों में तुगयानी। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट, रेलों ने तबाही मचा दी। 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी भी बह गए। अचानक आफत ने शहरियों को संभलने का मौका तक न दिया। माल मवेशी, बागात और फसलों के नुकसान पर शहरी परेशान। गुज़िश्ता रात 2 बजे एक तेज बारिश की वजह से एक हमारे इलाके में एक खौफनाक सैलाब आ गई। तो सैलाब की आवाज़ बहुत ऊंची थी, इस वजह से आवाज़ देख के हम घरों से निकल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई हम में से कोई जानी नुकसान इस इलाके में नहीं हुई। चिलास में भी बादल फट पड़े, रेलों से मकानात, फसलें और बागात को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरी, 20 तालिबात जख्मी। मर्दान में आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात, 3 शहरी जख्मी हुए। एबटाबाद में तेज हवा से बिजली के पोल और दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के बाद सवात और बाजोड़ के नदी नालों में तुगयानी। हुक्काम की आवाम से मोहतात रहने की अपील। बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। योब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए और 5 जख्मी हुए। मूसा खेल में आंधी से मुतअद्दिद मकानात की दीवारें गिर गईं। अटक में तूफानी बारिश से दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 भाई जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। NDMA ने आइंदा हफ्ते के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। इंतजामिया को हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी। बारिशें और सैलाब, स्वात के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। झीलों में भी तुगयानी। स्वात की वादी कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। कश्ती में 8 अफराद सवार थे, 3 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिशें और सैलाब और इसके बायस स्वात के नदी नाले और दरिया बिफर गए हैं। झीलों में भी तुगयानी है। स्वात की वादी कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशें और सैलाब, स्वात के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। झीलों में भी तुगयानी। स्वात की वादी कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। कश्ती में 8 अफराद सवार थे, 3 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिशें और सैलाब और इसके बायस स्वात के नदी नाले और दरिया बिफर गए हैं। झीलों में भी तुगयानी है। स्वात की वादी कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। टिकटॉक का जुनून, नौजवानों ने सिर्फ एक वीडियो के लिए जान दांव पर लगा दी। सरगोधा में ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने टिकटॉक बनाने के लिए नारान में गाड़ी दरियाए कुनहार में उतार दी। तेज मौजें गाड़ी को बहा कर ले गई, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रेस्क्यू का कमांडो एक्शन, राफ्टिंग टीम की बरवक्त कार्रवाई। गाड़ी डूबने से चंद सेकंड पहले ही चारों को बचा लिया। जैसे ही आखिरी शख्स को रेस्क्यू किया, गाड़ी डूब गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की राफ्टिंग टीम ने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया। टिकटॉक का जुनून, नौजवानों ने सिर्फ एक वीडियो के लिए जान दांव पर लगा दी। सरगोधा में ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने टिकटॉक बनाने के लिए नारान में गाड़ी दरियाए कुनहार में उतार दी। तेज मौजें गाड़ी को बहा कर ले गई, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रेस्क्यू का कमांडो एक्शन, राफ्टिंग टीम की बरवक्त कार्रवाई। गाड़ी डूबने से चंद सेकंड पहले ही चारों को बचा लिया। जैसे ही आखिरी शख्स को रेस्क्यू किया, गाड़ी डूब गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की राफ्टिंग टीम ने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया। और मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज। जुड़वा शहरों और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PWD अंडरपास और पार्क रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, मॉनसून बारिश के पहले ही स्पेल ने जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो मौसम है उसे यकसर तब्दील किया है और गर्मी का जोर टूट चुका है। इस वक्त भी जो है वो तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की फुहार जारी है और महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है बारिश का सिलसिला जो है वो 6 जुलाई तक जारी रहेगा। आज इस तूफानी बारिश से जिना सुपर मार्केट में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर जो है एक दरख्त गिरा, जिससे खुशकिस्मती कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ निशेबी इलाकों में पानी जमा होने की इतलात है। पाक PWD अंडरपास के अंदर भी जो है वो इस वक्त पानी जमा हो चुका है। इसके साथ साथ पार्क रोड के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी जो है वो पानी जमा होने की इतलात है, जिन्हें जिले इंतजामिया की जो है टीमें हैं वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि शहर में जहां पर भी पानी जमा हुआ है उसे निकाल दिया जाए। और जिले इंतजामिया ने तमाम टीमों को अलर्ट कर दिया है कि शहर में कहीं भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन ना हो, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है टीमों को भी। और बारिश का जो सिलसिला है 6 जुलाई तक जारी रहेगा। वक्फे से जी। शहजाद आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी पेशरफ्त। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अहम उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने तमाम रहनुमाओं का खैर मकदम किया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी सियासी पेशरफ्त सामने आ गई। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। LA 8 से मलिक जुल्फ़िकार अली और LA 10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने शमूलियत अख्तियार करने वाले रहनुमाओं को पार्टी परचम पहनाए और खैर मकदम किया। अब्दुल अलीम खान का आज़ाद कश्मीर के मसाइल के देरपा हल और महरूमियाँ खत्म करने का ऐलान। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में भरपूर शिरकत करेगी। इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार के मौके पैदा होंगे। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदे और समाजी और सियासी रहनुमा भी अब्दुल अलीम खान से मिले। मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद इलियास, चौधरी अमीर काबिल, मलिक निज़ाम इकबाल मिनहास ने सदर IPP से मुलाकात की। मलिक मोहम्मद मुश्ताक, मलिक सरमद अली, चौधरी मोहम्मद अशरफ, माजिद मलिक एडवोकेट और मलिक खालिद महमूद भी शामिल। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात करने वालों में साबिक सदर असातिज़ा तंजीम हाफिज काजिम मलिक भी शरीक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली और चौधरी भी इस मौका पर मौजूद थे।